He has started his education in the Muslim idea, and after that he became one of the important educationists. He had written numbers of books inspired by Sarvapalli Radhakrishnan, and on the topics of Muslim philosophy written numbers of books. He joined in the Indian National Congress, and he is till today he is the youngest president of National Congress. He is the youngest president of National Congress. And after independence, when the meeting was going on, who will be the education minister of India? Because after independence there was a crucial time. There was no educational policies then implemented. How will it will be implemented? What will be the policy of Indian education systems? Who will be the govern this type of crucial portfolio, education minister? Then National Congress has decided unanimously that Maulana Azad will be the first education minister of India. And after his presidency, first Indian educational policy has been constituted and implemented. After that it has been changed again and again. So on the tribute of the Maulana Azad, this day is celebrated as the National Education Day because he is a famous educationist. Now students, you have to know that as you are studying in the Kendriya Vidyalaya, and Kendriya Vidyalaya Sangathan is in such type of organization. We have to feeling very proud that we are attached with these organizations, and this Kendriya Vidyalaya Sangathan is celebrating different activities, different types of birth anniversary of the great leader, to know about their point of view, their contributions, their achievements, and what is the role for the development of their society. As you studying in the Kendriya Vidyalaya, it is an educational institution. So students, today is the educational day. You have to know what is the actual meaning of education. What is the actual meaning of education? In the geometry, you have already learned the definition of line. What is the definition of line? It has the no starting point, no ending point. Education is just like a line which have no starting point, no ending point. We cannot say from that point we have started our education, from that point we have finished our education. Education is a continuous process. From the morning to day we are learning and only learning. This is the education. Education is just like a third eye by which we can abolish all the devilships which is covered our mind. Education is just kind of a power by we can achieve it. Swami Vivekananda, the great philosopher of India, not only India but for the whole world, he defined education. Education is the manifestation of perfection already in a man. Rabindranath Tagore, the great poet of whole world, he defined the education by education which is enabling us, according to Rabindranath Tagore, by education which is enabling us to find out ultimate truth which emancipates us from the bondage of dust, give us king not of power but of love. And lastly, the father of the nation, Mahatma Gandhi, what is the point of view about the education? Father of the nation, Mahatma Gandhi told about education. Education is the complete drawing out that is based in child, our body, mind and soul. So to become a perfect educationist from till childhood to
at the end of the life, we have to study, we have to study, we have to study. We cannot say that our studies is completed at any higher post. It may be the highest post of any country. He or she cannot say that my education is completely finished. I have completed all types of education, because there is no limitation. अवधूत एक महान सन्यासी थे। उन्होंने एक रास्ते पे जा रहा था। रास्ते पे चलते चलते उनका अचानक ध्यान हुआ, गांव का जो मंदिर है वो मंदिर को हम दर्शन करेंगे, लेकिन मंदिर का पता नहीं था उनके पास। तो उन्होंने आसपास में देखा कोई है क्या नहीं है। इन्होंने जब नहीं देखा तब देखा एक नदी का किनारे में एक आदमी बैठ करके मछली पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। वो जाकर उनसे पूछा, भाई साहब कृपया बताएंगे मंदिर कहाँ है? कोई उत्तर नहीं। फिर दोबारा पूछा, भाई साहब बताएंगे मंदिर कहाँ है? कोई उत्तर नहीं। कम से कम आधा घंटा खड़े रहे उन्होंने, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। हाफ एन आवर बाद अवधूत महान सन्यासी ने देखा, वो आदमी ने एक मछली पकड़ा और अपने बैग में रख करके पीछे मुड़ते हुए देखकर कहा, अरे महान सन्यासी आप कुछ पूछ रहे थे? और हाँ, मैं पूछ रहा था गांव का मंदिर का रास्ता कहाँ है? आप तो मछली पकड़ने के लिए इतना समय व्यस्त थे। बोले, प्रभु क्षमा करिए, सीधा दिशा में चले जाइए और उत्तर से लेकर के थोड़ा सा जा करके दाएं मोड़ करके मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। अब वो तो थोड़ा गया, फिर लौट कर आया और मछली वाला का पकड़ छू करके, पाँव छू करके प्रणाम किया। बोला, अरे क्या कर रहे प्रभु, आप महान सन्यासी ब्राह्मण है, हम तो अच्छू थे, मछली वाला है, हमको पाँव छू करके प्रणाम कर रहे। बोला, हाँ आप मेरा शिक्षक है, आपसे मैं आज शिक्षा मिला, आपसे हमको ज्ञान मिला। वो ज्ञान है कंसंट्रेशन। अगर एकाग्रता नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नचिकेता एक ऋषि थे, 13 इयर्स में सारे ज्ञान अर्जन कर चुका था, आत्माहंकार से भरा हुआ सन्यासी नचिकेता। मैं तो सब कुछ सीख लिया, आई हैव लर्नड एवरीथिंग, और संसार में ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो मैं शिक्षा प्राप्त कर सका। महर्षि याज्ञवल्क्य से लेकर के सब लोग उपस्थित थे। महाराज जनक ने ऐलान किया, आज जो ब्रह्म ज्ञानी ऋषि है उसको मैं पुरस्कृत करूंगा। सारे जितने सन्यासी है, जितने ज्ञानी पंडित है, सब लोग एकत्रित थे। नचिकेता भी उपस्थित थे। नचिकेता, महाराज जनक ने ऐलान किया, मेरे इस राजसभा में जो आपने आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी समझते हो, कृपया मंच पे आइए। कोई नहीं आया। नचिकेता ने सोचा, आई हैव लर्नड एवरीथिंग इन द ओनली द 13 एज, मेरा साथ कोई कंपटीशन तो कर ही नहीं सकता। उन्होंने आया, बोला आप क्या? आपको महाराज जनक ने पूछा, हे बालक तुम क्या समझते हो, तुम सब कुछ जानते हो? हाँ, मैं दुनिया में सारे चीज में सीख चुका हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं जानता हूं। प्रश्न पूछिए। ज्ञानी पंडित बैठा हुआ है और एक से बाद जितने ज्ञानी पंडित सन्यासी महात्मा बैठे प्रश्न पूछ रहे और एक के बाद एक आंसर दे रहे नचिकेता। ऐसा कोई आंसर नहीं जो नचिकेता दे नहीं पा रहा था। सब लोग थक गया प्रश्न पूछते पूछते। नचिकेता बोले और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है पूछिए। कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो महाराज अभी ऐलान करिए, ब्रह्म सबसे ज्ञानी पंडित कौन है? महाराज जनक पुष्पमाला लेकर के नचिकेता के सामने जैसे है, नचिकेता सोचा मेरे गले में ही लगाएंगे माला, लेकिन उनको क्रस करके दूर एक सन्यासी, वृद्ध सन्यासी बैठे हुआ था, महान ज्ञानी पंडित बैठा हुआ, उनके गले में माला डाल दिया। महाराज जनक ने को देख करके नचिकेता ने किया, ये क्या किया? मैंने सारे प्रश्न को उत्तर दिया, ऐसे कोई प्रश्न है संसार में जिन्होंने हमको पूछा नहीं गया? और जो पूरे एक आदमी बैठा हुआ है, ज्ञानी है, जो भी है, वो तो एक भी प्रश्न को उत्तर नहीं दिया, एक भी प्रश्न पूछा भी नहीं, उनको आप कैसे इतना महान ज्ञानी समझते हैं? तो महाराज जनक ने कहा, ये महर्षि ब्रह्म ज्ञानी याज्ञवल्क्य है। ब्रह्म ज्ञान क्या है तुम जानते हो नचिकेता? नहीं।
उसको उनसे जाकर सीखो। नाचिकेता ने किया, बोला प्रभु आपसे मैं ब्रह्म ज्ञान सीखना चाहता हूँ, क्या आप सिखाएंगे? बोला हाँ। लेकिन वो तो बहुत दिन लगे। बोला वो तो कुछ भी नहीं, 13 साल में मैं सब कुछ सीखा हूँ, 13 दिन में सीख जाऊंगा। और सचमुच 13 डेज में पहले ही नाचिकेता ने ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। और 14 डेज में उन्होंने आया, बोला प्रभु प्रश्न पूछिए, परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा नहीं आज नहीं होगा, 7 दिन उपवास करके आइएगा, अन्न भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, प्रश्न पूछेंगे। 7 दिन अतिक्रम करके जब नाचिकेता है, प्रभु प्रश्न पूछिए, बोला आज नहीं, और 5 दिन उपवास करना, पानी भी नहीं पीना, अन्न भी नहीं लेना, फिर प्रश्न पूछूंगा। इतने दिन बाद 7 + 5 इतना दिन अतिक्रम करके जब नाचिकेता आया, कुछ बोल ही नहीं रहा था। बोला नाचिकेता बैठो, ब्रह्म ज्ञान क्या है बताओ। बोला प्रभु इससे पहले थोड़ा मैं पानी पी सकता हूं? बोला हाँ पीजिए। पानी पिया। बोला प्रभु मेरा इतना दिन से मैं अन्न नहीं खाया, थोड़ा अन्न खा सकता हूं? बोला हाँ खाइए। इतना दिन में सोया भी नहीं, थोड़ा शयन कर सकता हूं? बोला हाँ सोइए। शयन करके 5 घंटा के बाद नचिकेता ने आया। ऋषि याज्ञवल्क्य ने बोला ब्रह्म ज्ञान क्या है बताओ नचिकेता। बोला प्रभु ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ब्रह्म ज्ञान क्या है, मैं तो यही सीखा हूं, यही समझ में आया है अन्न ही ब्रह्म है। जब तक भूखा है प्यासा, मैं जितना कुछ प्राप्त किया सब कुछ भूल चुका हूं। तब याज्ञवल्क्य ने कहा आशीर्वाद देकर, नाचिकेता आज तुम सचमुच ब्रह्म ज्ञानी बने। बोलो शिक्षा का क्या मतलब है, इतना दिन से तुम क्या शिक्षा प्राप्त किया? नाचिकेता ने कहा गुरुदेव मैंने यह शिक्षा प्राप्त किया, मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मैं संसार में कुछ भी नहीं सीखा, यही शिक्षा में प्राप्त किया। बोला यही ब्रह्म ज्ञान है। संसार में कोई चीज समाप्त नहीं होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जीवन का अंतिम दिन तक हम लोग सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और सीखते रहेंगे, यही शिक्षा है। और नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का यही लक्ष्य है। चाहे जितने भी है, जो भी है, बचपन से लेकर अंत तक सीखते रहिए, सीखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने अपने अच्छे तरह से सुना एजुकेशन डे के बारे में। थैंक यू मैडम, थैंक यू।